It's been fantastic, and yes, I've gone through a lot of ups and downs, mostly downs, less ups in life. But if you ask me today that do you want to change any aspect of your life, probably not. You can see the Milky Way at night. So that was really, it was, I think, life-changing moment for me. It was very beautiful. It was. So I think all kinds of travel, whether it is a short travel, it's a long travel, and whether it's a travel with your family, friends, and mostly travel alone. I mostly travel alone. As a young girl, in my 20s and in my school days, I used to really look down upon people who used to be like reading self-help books. So I really, I mean, I don't know how politically correct it is, but really, the divorce has been the best thing of my life. I guess ऐसा कुछ भी statement है politically correct. हर चीज मतलब सही मेरे लिए है. तो सच में I have owned it up and I have really felt so happy. Feeling angry, you can, you know, you can just like shout vent it out, yeah. or you can just take a pillow and you can just beat it up. But if you're feeling victimized, it just kills you from inside, and that is the worst part about toxic relationships. लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली महिलाओं के लिए काफ़ी unsafe है. An 8-month-old baby was brutally raped in the capital, and I can say with all responsibility that once some people rape a girl, and then the entire system rapes the girl, and this is an example of that. मैं ऐसी लड़कियों से मिली हूँ जो CEOs हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज चला रही हैं, लेकिन वो रोज़ घर में रात में पिट रही हैं. You don't have to be an Anna Hazare, or you don't have to be Swati, or you don't have to be, you know, people who have left everything and अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ के, and or maybe, you know, you don't have to be a Mother Teresa. If you can be, great, but आप जहाँ हो, जिधर हो, आप एक काम दिन में अच्छा कर सकते हो. 2 रातें झुग्गी में जाके रह लीजिए, सब पता चल जाएगा. सब कुछ आपकी जो अकड़ है वो सारी धरती पे आ जाएगी. और कॉन्स्टेंटली हमें बेटर बनना है, उस एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा. आई थिंक दैट इमोशनली एंड मेंटली आई हैव ग्रोन ट्रेमेंडसली एंड इवन स्पिरिचुअली, बिकॉज एनी हार्डशिप ब्रिंग्स यू क्लोजर टू गॉड. Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, I'm Abir Lahiri. You're watching What's Up Abir. Joining me today in conversation is somebody who has been the voice of Delhi, all the Mahilas of Delhi. She's a known social activist and also the chairperson for Delhi Commission of Women. Swati Maliwal, welcome to AP Live Podcast. How are you? I'm good, thank you. मैं आपको मैम बोलूँ, मैं आपको स्वाति जी बोलूँ, मैं आपको स्वाति बोलूँ, क्या बोलूँ? स्वाति बोलूँ. ठीक है, चलिए. अक्सर लोग जब बड़े ओहदे पे चले जाते हैं वो बोलते नहीं जी जरूर लगाइएगा, but thank you for being humble. Thank you, not at all. I'm not that old. ठीक है. How has been the life? You are a proper Delhiite. You like not exactly a Delhiite, but you have been living in NCR. You're born and raised here. कैसी थी journey अभी तक की? It's been fantastic, and yes, I've gone through a lot of ups and downs. Mostly downs, less ups in life. But if you ask me today that do you want to change any aspect of your life, probably not. Okay. Because I think that what I am today, the strong person that I am today, is because of the downs. So cool. So yeah, it's been good. Very few people will say कि यार आज मुझे कोई regret नहीं है past का, because जो भी होता है सब बोलते हैं अरे नहीं ये चीज़ चेंज करना चाहिए, बट सो कूल दैट यू सेड कि कुछ नहीं चेंज करना, सब बढ़िया है. मतलब बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं और शायद नहीं होती, आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन, बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि जो बहुत हार्डशिप्स फेस करते हैं, तो अगर उन हार्डशिप्स को आप लाइफ में पॉजिटिवली लेना सीख जाते हैं तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन पाते हैं. सो आई रियली फील वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम, एंड इट्स नॉट बिन ईजी. You see, when you face a lot of hardships, there's a lot of negativity that surrounds you. True. And many times such people are constantly sort of berating themselves. But over the past 3 years since my divorce, I have really worked on myself and I have looked after myself, and for the first time in my life, I'm in love with myself. Wow, so cool. I feel very happy with who I am. I feel very happy with every aspect of me, and yeah, so I have absolutely zero regrets. In the world of social media where everybody is just for the sake of flaunting, saying self love, it's so good to meet a person who is literally flaunting and wearing on her sleeves ki self love is actually important. It is the most important thing. You see, all my life I've been an activist. I have tried my level best to help others. I have lived in slums. I have gone through the worst hardships
relationships because I had that calling and I had that passion कि मुझे कुछ बदलना है, मुझे ज़िंदगी बदलनी है, मुझे अपनी ही नहीं बाकियों की भी बदलनी है. But I think पता नहीं कब किसकी क्या दुआ लग गई जिससे कि आज मैं I'm very happy with my own skin. I'm very happy with who I am. And I know from where I have come. I know मैं कितनी समस्याओं से मैंने ज़िंदगी अपनी काटी है. लेकिन आज इस मोमेंट में अगर आप मुझसे सब कुछ ले लीजिए, सब कुछ छीन लीजिए, तो भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को स्वाति बहुत अच्छी लगने लगी. Wow, so cool. You are raised in Ghaziabad. You have lived there. No, I was born in Ghaziabad, but all my life almost I have been raised in Noida and Delhi. So like, it's been both. But I am not a proper Delhiite. I've moved to Delhi for past 7-8 years. From past 7-8 years, Delhi में एक in general एक aggression है और एक जो एक so-called perception है कि it's not a very safe city for girls. You are in Delhi Commission for Women. You are the flag bearer of Delhi Commission for Women. How do you see this perspective? क्या ये सच है? अगर हाँ तो बिल्कुल honestly हमें बोल भी देना चाहिए और नहीं है तो क्या नहीं मतलब जो भी रियलिटी है. I love Delhi. Okay, let's put it on record because Delhi is home for me. मैं कहीं भी चली जाऊँ and I love traveling, लेकिन जब मैं वापस आती हूँ दिल्ली तो दिल्ली मेरे को सुकून है. दिल्ली सुकून है मेरा. मुझे बहुत अच्छी लगती है दिल्ली. लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली महिलाओं के लिए काफ़ी अनसेफ है. आप दिन में भी, रात में भी, अकेले भी, ग्रुप में भी, and on a daily basis 5 to 6 rapes are reported in Delhi. And I'm telling you those cases which are reported. There are several more on a daily basis which are not reported because there are so many girls, little children, their parents, they approach us and they tell us that look, you know, this has happened, but I don't want to file a complaint because I feel that the system will not support me. So many cases are happening, and the kind of cases that are happening, I mean the brutality. An 8-month-old baby was brutally raped in the capital. She had to undergo 3 operations. मैं जब उससे मिलने गई थी वो उसका इतना खून बह रहा था. I don't think I'll ever be able to get rid of that moment. I mean it will haunt me forever. मैं उसके बाद अनशन पे बैठी. My hunger strike lasted for 10 days. On the 10th day, Government of India accepted my demands and brought a change in the law, made the strongest punishment for rape of children, and also added several resources, at least on paper, for against rape. So you see the kind of cases that are happening, the intensity of the cases and the number of cases. This 16-year-old girl who was recently hacked to death, I mean she was just 16. She was there just walking on the street. This man just catches hold of her and brutally attacks her for 40 times. And just imagine the insensitivity that there are people who are walking nearby, पास से गुजर रहे हैं, and mind you उसमें women भी थी, and they just look back and they just walk ahead. So definitely there is absolutely no doubt about it. It's a very shameful thing that Delhi is the rape capital. It has become the rape capital. It's really unfortunate, but that is the truth, and all women, all girls who live in Delhi, they know it, that it's a fact. Do you see a silver lining there कि शायद कभी कुछ सही हो सकता है या हम सही दिशा में जा रहे हैं इसको चेंज करने के लिए? Not at all. In fact हम वर्स दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 2012 में निर्भया का केस हुआ था. पूरा दुनिया सड़क पे थी. मुझे याद है मेरे को भी पुलिस ने पकड़ के लाठी मारी थी. वो आंदोलन वहाँ शुरू हुआ. बहुत सारे कानून में बदलाव हुए. अभी मैंने जैसे बताया 10 दिन मैं अनशन पे बैठी, फिर उसके अगले साल फिर 13 दिन तक अनशन पे बैठी, भूखी रही. काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं, काफ़ी कानून में बदलाव हो जाते हैं, काफ़ी अनाउंसमेंट्स हो जाते हैं. लाइक मेरे 13 दिन के अनशन के बाद ये अनाउंसमेंट हुआ कि देश भर में 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सेटअप कर दिए जाएंगे, बहुत बदलाव किया जाएगा, पुलिस विमेन हेल्प डेस्क होंगे पुलिस में. बट आज का भी फैक्ट यही है कि कहीं ना कहीं कुछ नहीं बदला है. नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि हमारी देश की चैम्पियन लड़कियाँ, रेसलर्स जो हैं, उन्हें आज सड़क पे बैठने की क्या ज़रूरत है? I was coming to that कि like इतने प्रोटेस्ट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, हम पॉक्सो की बात करते हैं और इतने सारे रेसलर्स प्रोटेस्ट में बैठे हैं और सिर्फ एक है, अचानक से रैंडमली पॉक्सो का एक्ट वापस हो जाता है क्योंकि जो गवाही देने के लिए शायद काफ़ी लोग डर रहे हैं. बिल्कुल लोग डर रहे हैं. But that is the sad reality. It is so horrible. You see, these are champion girls. इन लड़कियों ने देश के लिए ओलंपिक मेडल लाए.
जिन लड़कियों को हमें बिल्कुल सर पे चढ़ा के रखना चाहिए, आज उन लड़कियों को सड़क पे बैठना पड़ रहा है। ये लड़कियां आई, इन्होंने कंप्लेंट करी। Firstly, it takes a lot of effort and guts and courage to talk about sexual harassment that has happened with you and to be able to report about the matter. इन लोगों ने बड़ी हिम्मत करके एक कंप्लेंट करी। 6 दिन तक दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी। आई डोंट थिंक ऐसे इतना ब्लेटेंट हो सकता है, मतलब दिस इज सो ब्लेटेंट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, FIR दर्ज हो गई। अब FIR दर्ज हो गई। दिल्ली में जैसे मैंने बताया 6 रेप केसेस हो रहे हैं, उनमें से काफ़ी केसेस पॉक्सो के केसेस होते हैं, बच्चों के केस होते हैं। इमीडिएट अरेस्ट होता है, अनलेस वो भाग जाए उसको भी पकड़ के लेकर आती है दिल्ली पुलिस। पर इस केस में अब 40-50 दिन हो गए, अभी तक अरेस्ट नहीं करा गया। उस गुंडे को, ब्रिजभूषण को छोड़ा हुआ है सरकार ने और पुलिस ने कि आप जाइए और किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपनी गवाही अपने फेवर में पूरा सिस्टम चलाइए, बिकॉज ही इज़ एन MP and he has a lot of influence, he has a lot of money, he has a lot of muscle power. And ऐसे में इतने दिन के बाद अब वो जो बच्ची है उसकी गवाही वापस कर ली जाती है और ये लड़कियां अकेले लड़ रही हैं, ये लड़कियां बिल्कुल एंड तक लड़ रही हैं। बट इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट एंड द काइंड ऑफ विक्टिम शेमिंग दीज गर्ल्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू, इट इज़ हॉरिबल। एंड यू सी, इट इज़ नॉट अबाउट 4 or 5 girls. This is the message that is given by the government as well as the police to the country. This is a representative of the entire society. Absolutely. This is a message that if you will stand up against sexual harassment at workplace, against a man who is influential, the entire system will come and crush you. And that's exactly what is happening here. It's really, really unfortunate. And in a state in Delhi, which is already unfortunately known as the rape capital, to do something so blatant and to be just completely standing with a gunda who already has 40 criminal cases against him, I mean, what is the message that the government is giving? It's really, I mean, really, in all responsibility, the Delhi Commission for Women in the past 6 years has handled over 100,000 cases. I have seen these girls cry, I have seen these girls scream, and I can say with all responsibility that once some people rape a girl and then the entire system rapes the girl, and this is an example of that. हम in general बोलते हैं कि society बहुत ज़्यादा patriarchal है and we can see that, मतलब there is no shame in accepting the fact कि हाँ ये सच बात है, but how do you see, you are a policy maker, how do you see that this shift can happen कि ये एक न्यूट्रल सोसाइटी बने, दोनों की ही उतनी इज्जत हो, ये नहीं कि इसकी ज़्यादा या इसकी कम. हाउ डू यू सी दैट गैप कैन बी ब्रिज्ड? यू सी देयर आर 2 थिंग्स. वन इज़ दैट अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो लोगों में डर बैठता है. आज फैक्ट ये है कि किसी को डर नहीं लगता. लोगों को लगता है कि किसी महिला के खिलाफ, किसी बच्ची के खिलाफ कुछ गलत कर देंगे तो ये सिस्टम उनको बचा लेगा. एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द सेम. सो सबसे पहले ज़रूरत ये है कि देयर नीड्स टू बी अ सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट. अगर हम ये अचीव कर पाते हैं तो लोगों में एक डर बैठता है कि मैंने कुछ गलत करा, ये सिस्टम मुझे बख्शेगा नहीं. एंड दैट इज़ हाउ इन अ कंट्री लाइक आवर्स विच इज़ सो बिग, विच इज़ पॉपुलेटेड, विच इज़ डाइवर्स, this is the one straightforward way on which the governments can actually work. Suppose हम पुलिस के संसाधन बढ़ा दें, हम पुलिस की जवाबदेही तय कर दें, हम नंबर ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बढ़ा दें, हम फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना दें. अगर हम ये 4 चीज़ें कर लें तो हर हाल में सज़ाएं होंगी, तुरंत सज़ाएं होंगी और प्रोसेस द्वारा सज़ाएं होंगी. तो इससे एक बहुत तगड़ा पूरे देश में मैसेज जाएगा और एक डर बैठता है कि मैंने कुछ गलत किया तो मेरे को छोड़ेगा नहीं ये सिस्टम. एंड दैट इज़ हाउ क्राइम्स स्टॉप. दैट इज़ वन. The other aspect is, of course, there needs to be much more awareness and mindset change that has to be brought about. तो स्कूल से हमें बिगिन करने की बहुत ज़रूरत है. आज भी हम लोग अभी NCERT के टेक्स्ट बुक स्टडी कर रहे हैं and we will be coming out with a report as well. और हम ये देख रहे थे कि काफ़ी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, काफ़ी इश्यूज़ के ऊपर तो बात भी नहीं करते. मतलब स्कूल्स में भी बात नहीं हो रही. अगर अभी हमने देखा हो कुछ दिन पहले ही एक 30 साल के आदमी ने, महाराष्ट्र का आदमी था, उसने अपनी 12 साल की बहन को मार दिया, जान से मार दिया, बिकॉज दैट गर्ल हैड हर फर्स्ट पीरियड्स एंड दिस मैन फेल्ट दैट द गर्ल हैड सम सेक्सुअल एक्टिविटी, you know. So just imagine the kind of myths
that are there in the society, the kind of taboos that are there in certain topics, and हम लड़कियों से तो हमेशा बात करते हैं. आप किसी भी घर में चले जाइए, लड़कियों के लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, बट बॉयज़ से तो कोई भी बात नहीं करता. तो क्यों नहीं हम स्कूल्स में वो बात करें? क्यों कंसेंट के बारे में स्कूल्स में बात नहीं होती? क्यों सेक्सुअल हेल्थ के बारे में स्कूल्स में बात नहीं होती? सिर्फ गुड टच बैड टच वो भी थोड़ा सा आपने कर दिया, उससे क्या होगा? वाई कैन नॉट वी मेक श्योर दैट स्कूल से बिगिन करा जाए, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग सेशंस हों, एक बहुत बड़ा और व्यापक बदलाव करा जाएगा, तब जाके ये एक माइंडसेट का हिस्सा बनेगा. नहीं तो आजकल का तो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट. एंड ये मोर देन प्रिविलेज क्लास से या अंडर प्रिविलेज क्लास में ज़्यादा जाना चाहिए? मेरे हिसाब से दोनों में जाना तो दोनों में. आई एम सेइंग कि वहाँ पे तो देन टू आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, कोई ना कोई माँ बाप शायद किसी न किसी से बात करता है. नीचे तबके पे वो भी नहीं होता. आई एग्री विद यू, बट यू नो देर आर, आई मीन बिकॉज मैं भी ऐसी इनफैक्ट सोचती थी जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन कमीशन का ये बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं रहा है. हमने ये देखा है, मैं ऐसी ऐसी लड़कियों से मिली हूँ जो CEOs हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज चला रही हैं, लेकिन वो रोज़ घर में रात में पिट रही हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ इनफिडेलिटी कर रहे हैं, और बहुत ब्रूटल अटैक हो रहा है उन पे भी और उनके बच्चों पे भी, और वो फिर भी उससे नहीं निकल पा रही हैं. उसके बनिस्बत मैंने ऐसी बहुत महिलाएं देखी हैं जो झुग्गी से आती हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि उनका अगला मील कहाँ से आएगा. वो बच्चे बिल्कुल, वो और बच्चे सड़क पे आ जाएंगे अगर उन्होंने कोई स्टेप लिया, और वो फिर भी स्टेप लेती हैं. मैं ऐसी बहुत महिलाओं से मिली हूँ जो अपर क्लास से आती हैं, एलीट क्लास से आती हैं, बट वो अगर उनके बच्चे के साथ घर में ही कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है तो वो कुछ नहीं बोल पाती हैं. लेकिन बहुत महिलाएं मैंने ऐसी भी देखी हैं जो गरीब घर से हैं, बट उन्हें पता चलता है तो वो उस पर एक्ट करती हैं. बट दिस इज़ ऑब्वियसली, इट इज़ नॉट लाइक, यू कैन नॉट जनरलाइज इट. सो बोथ kinds of people exist across economic classes, across castes, across religions, everywhere. All kinds of people are there. It's just about the social conditioning. किसको किस तरीके की कंडीशनिंग मिली है, किसको किस तरीके की इनर स्ट्रेंथ है, किसको किस तरीके का उसने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बनाया है. और ऑब्वियसली देर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो डेस्टिनी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. सो बहुत सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व होता है, तब जाके एक इंसान वो सपोर्ट गैदर कर पाता है. बट टू से दैट यू नो इकोनॉमिकली अगर आप हाई हो तो यू आर एबल टू टेक इट ईजिली, नो. इनफैक्ट आई टेल यू वाई, बिकॉज यू सी, एक जो गरीब इंसान है, अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है. जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है तो इन एनी केस रिपोर्ट हो जाता है. बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर, काफ़ी बार ऐसे होता है कि वो चीज़ रफा दफा कराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सबका डर ये नहीं है जो लोग उस केस को रिपोर्ट नहीं करते, उनका डर ये है क्योंकि उनको डर लगता है कि ये सिस्टम उनकी बच्ची को छोड़ेगा नहीं. पर मैं इतना बता दूं, अगर वो केस रिपोर्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं वो अपने आप को और अपनी बेटी को या अपने बेटे को, क्योंकि बेटों के साथ भी आजकल बहुत गलत हो रहा है, उनको बहुत डैमेज कर देते हैं. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिपोर्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू टॉक अबाउट अब्यूज़. आप अगर अपनी बात, अब्यूज़ की बात को आप बोल नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर आपको ज़िंदगी भर खाता रहता है. सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई मीन इट्स द बिगेस्ट disfavor anybody can do to their children by not reporting a case. You guys are a support system to all the women who need any kind of help. In general, if I'm a layman who does not know much about DCW or any commission for women, what exactly is the entire work? कैसे function करते हो आप लोग? Policy, obviously आप लोग, you guys are very important part in policy changes. But support में कैसा DCW function करता है? So like I said, in fact before I joined the commission, in 8 years the previous chairperson had handled one case. Now in 6 years, we've collated the data for 6 years, it's been over 125,000 cases. Why this big difference? It's just because we wanted to work. काम करोगे तो लोगों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा तो वो आपके पास आएंगे. आज की स्थिति ये है कि मैं काफ़ी बार रात में 9 बजे तक यहाँ बैठी रहती हूँ, क्योंकि कोई फला इंसान को वहाँ पता चला, कोई केरला से उठ के आ रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से उठ के आ रहा है, कोई असम से उठ के आ रहा है, कोई यहाँ से राजस्थान से उठ के आ रहा है कि आपका नाम सुना है, आप मिलो, आप बोलोगे
तो ही काम होगा। एंड ऐसे केसेस, जबकि हमारा जुरिस्डिक्शन दिल्ली है, बट हम उन सारे केसेस को लेते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं। सो वी हैव सेवरल सेल्स। एक लड़की जब हमारे पास कंप्लेंट करती है तो हमारे पास एक हेल्प डेस्क है, वो आती है, उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करी जाती है, एंड विद इन नो टाइम, सपोज अगर इमीडिएटली हेल्प की ज़रूरत है, सपोज शी नीड्स टू बी सेंट टू द पुलिस फॉर एन FIR, हमारी टीम साथ में जाती है, हम उसकी FIR दर्ज कराते हैं। तो एक प्रोसेस तो ये है कि पोस्ट के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमारे को अप्रोच करा जाता है और हम उस पर काम कराते हैं। दूसरा प्रोसेस ये रहता है कि 181 हमारी विमेंस हेल्पलाइन है, उस पर कोई भी कॉल कर सकता है, कभी भी कॉल कर सकता है, 24/7 है और पूरी तरीके से टोल फ्री है। वहाँ जब कॉल करता है कोई, तो वी हैव 23 कार्स, वी हैव 66 काउंसलर्स वर्किंग राउंड द क्लॉक, एंड वी आर गेटिंग अराउंड 2000 to 4000 कॉल्स एवरी डे। सो वो कॉल्स पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हमारी टीम इमीडिएटली पहुँचती है और लड़की की मदद करती है। वी हैव बीन एबल टू रेस्क्यू थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स एंड women, even from cases of prostitution, sex trafficking, commercial sexual exploitation, ये सारे cases में से हम लोगों ने लड़कियों को बचाया। Is that very prominent in Delhi? It is very prominent in Delhi, extremely prominent in Delhi. I would say that Delhi has become a hub, and even somewhat an international hub, because a lot of international girls are also being trafficked. So it's a very bad situation. It's not, it's quite bad. But when we talk about this, जब ट्रैफिकिंग हो रहा है, बॉर्डर पे कोई आ रहा है, ऑब्वियसली कोई ना कोई चेक तो होता होगा, या इन जनरल अगर इतना रिपीटेड हो रहा है, सो कहीं ना कहीं सिस्टम में एक लूप होल है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, ट्रैफिकिंग इज अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जस्ट लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, वैसे ही सेक्स ट्रैफिकिंग, बहुत दीज क्राइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो ही नहीं सकता सिस्टम की मिली भगत के बिना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ जो लड़कियाँ आ रही हैं, वो सारा का सारा एक सिस्टम होता है, एक माफिया होता है, वो उसको कंट्रोल करता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे अथॉरिटीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं। नहीं तो आप मुझे ये बताइए, हम जैसे मुनीरका में घुस के हमने एक बार 40 लड़कियों को रेस्क्यू किया था, पहाड़गंज में घुस के हमने 50 लड़कियों को रेस्क्यू किया था। तो मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमें पता चल जाता है, हम तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, हम जाके रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन वहाँ की लोकल पुलिस को नहीं पता चलता। ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक, और उसी तरीके से आप ड्रग्स को देख लीजिए, आज दिल्ली की गली गली में स्पेशली जो झुग्गियाँ हैं वो इतनी अनसेफ हो चुकी हैं। 10 साल पहले जब मैं एक्टिविस्ट, बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिविज़म का ही काम करती थी, तब मैं झुग्गी में रहती थी और मैं देखती थी कि झुग्गियाँ अनसेफ थीं, लेकिन इस लेवल का अनसेफ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे उस समय इतने खुले में ड्रग्स और दारू सड़क पे नहीं मिलती थी। आज तो आप किसी भी गली में निकल जाइए, कोई भी झुग्गी पे चले जाइए, वो आपको बता देगा कि कहाँ पे घरों के अंदर ड्रग्स और अल्कोहल मिल रही है, जिसकी वजह से 6 या 5 बजे के बाद लड़कियों का बाहर निकलना इतना अनसेफ हो गया है। आप देखिए, छोटे छोटे घर हैं, किन्हीं किन्हीं घरों में तो वो भी नहीं है, दरवाजे नहीं है, पर्दे से काम चल रहा है, आदमी आ रहा है, पूरी रात पी रहा है और उसके बाद वहीं पे वो अंदर घरों के अंदर घुस रहा है। इस तरीके की तो महिला आयोग में इतनी कंप्लेंट्स आती हैं। तो मुझे ये बताइए, ये इलीगल अल्कोहल और इलीगल ड्रग्स दिल्ली के अंदर आ कैसे रहे हैं और इतनी भारी मात्रा में कैसे आ रहे हैं? सो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा एक पुलिस इज इन्वॉल्व्ड एंड अदर अथॉरिटीज आर इन्वॉल्व्ड। आपने तो ऐसे फैक्ट्स बता दिए कि मैं एकदम उस शौक में हूँ कि भाई चल क्या रहा है। एंड वी फ्लॉन्ट दैट दिस इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। लॉजिकली यहाँ पे पार इतना ज़्यादा होना चाहिए कि ये सब चीज़ें ओपनली नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली नहीं होनी चाहिए। There is a lot to flaunt about in Delhi. It's a beautiful historic city. True. It is, it's my home. I really love it. Yeah. But the point is that अगर हम अपने घर की गंदगी को साफ नहीं करेंगे, तो फिर तो कब एक दिन ऐसा आएगा जब लोग बिल्कुल ये कहेंगे कि नहीं, हम तो दिल्ली में नहीं जाना चाहते या हम दिल्ली में नहीं रहना चाहते। और फ्रैंकली ऐसा होने लग गया। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने दिल्ली से सेफ्टी के कंसर्न को लेकर बाहर शिफ्ट किया। So it's a matter of, I think it's a matter of shame. True. When you see these kind of issues on a regular basis, when you जब आपको रोज़ ऐसे केसेस मिलते हैं, आपके पास रिपोर्ट्स आती है, रोज़ खबरें पढ़ते हो, डज इट इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ? लाइक क्या अजीब थॉट्स आते हैं कि मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं कहाँ कम हूँ, या मैं कहाँ ज़्यादा हूँ, मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? It absolutely affects the mental health, not just mine. There are hundreds of people working in the Delhi Commission for Women. We have constant discussions about it because you see, on a daily basis we are meeting several trauma survivors. वो बहुत दर्द में हैं।
आप अगर एक अच्छे इंसान हो तो जब आप ऐसे इंसान से मिलते हो जो दर्द में है तो उसका दर्द आपका दर्द हो जाता है और बड़ा इजी होता है. इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब कि आपने यहाँ से कट किया और अब आप उठ के घर चले गए. वो घर में आता है क्योंकि वो थॉट्स आते हैं, वो मन बहुत गुस्सा आता है, बहुत ऐसा लगता है कि और क्या करूं जिससे कि ये सिस्टम सुन ले, क्योंकि हम 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, हम सातों दिन मेहनत कर रहे हैं. और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि अगर बाकी अथॉरिटीज़ भी इतनी मेहनत करने लग जाएं, अगर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर दिल्ली को बदलाव करने की कोशिश कर ले तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलाव हो सकता है. सो वो कॉन्स्टेंट थॉट्स, वो इट हैज़ अ huge toll on the mental health. And ये सिर्फ हमारा नहीं है, anybody who's interacting with survivors and that too is working under such extreme pressures. क्योंकि हमारे पे तो चलिए हम survivors के साथ interact कर रहे हैं, but there's a lot of danger also involved. True. Because हम ऐसे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ action करवा रहे हैं जो बहुत powerful हैं इस system में. तो मेरे ऊपर कितनी FIR कर रखी है दिल्ली पुलिस ने, मैं कोई सिक्योरिटी तो मेरे पास है नहीं, हम चलते हैं तो कब कल कुछ हो जाए. अभी 6 महीने पहले मेरे घर पे अटैक कर दिया. सम मेन एंटर्ड द हाउस एंड दे वैंडलाइज्ड इट कम्प्लीटली एंड दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. What will he gain out of it? डराने की बात है, धमकाने की बात है. देखिए आप ना भी डरें लेकिन आपकी फैमिली होती है, आपकी फ्रेंड्स होते हैं, मतलब इट वाज अ ह्यूज थिंग. एंड उसके बाद मेरे को इतने कॉल्स आए, मेरी पूरी फैमिली ने मेरी इंटरवेंशन प्लान करे कि भाई तुम क्या कर रही हो. But you know, this is my calling, so I will do it. But obviously the point is that there is a lot of stress involved on both aspects. It has a huge toll, and yes, there was a time, especially when I was going through my divorce and I filed for divorce against my husband, and it was a very difficult period because like, personally I was going through a lot, plus every day on a daily basis I was doing this, so it was very difficult. And I think that was like literally long years was my rock bottom. But after that I realized that how important it is for people like us to look after ourselves. So I have started doing it. And earlier, because I have always been a workaholic, I have always been somebody who's, you know, constantly working. सुबह से एकदम सुबह से शाम तक बस मेरे को काम. How does the day look like? You get up and then newspaper या news. So earlier my day used to look like कि बस वो पूरा दिन बस काम 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 काम. अब मैंने उसे change करा. Now when I get up, I meditate for a bit. Very good. Then after that, I make sure that I go to the gym. चाहे कुछ हो जाए, चाहे I have to get up at 4 o'clock and do the gym, I will do it. And then उसके बाद then my work starts. And then I have realized that when you take out that kind of time for yourself, it really does help. और अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि I take out, you know, some hours in the week to meet people whom I really love, to be with my family, and you know, gain support from them, and just show my appreciation for them being in my life. And I think these changes have really helped my mental health. I feel much more positive. I feel more giving. I feel very happy in general. So मेरे हिसाब से पहले मैं ये मानती थी कि नहीं नहीं ये चीजें तो मुझे काम करना है, हाँ मुझे बड़े काम करना है, हमें नहीं फर्क पड़ता. एक्चुअली इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. आप ज्यादा काम करने में एफर्ट ज्यादा लगते हैं, पावरफुल ज्यादा एफर्ट. बहुत बेटर करते हो आप, डिटैचमेंट भी सीखते हो कि हाँ ठीक है मैंने यहाँ तक कर सकती थी, कहाँ पे स्टॉप लगाना है, मैं ये कर सकती हूँ. गीता भी यही कहती है कि भाई अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो. तो मैंने काम करा, अब उसके बाद अगर मैं उसके बारे में सोचे जा रही हूँ कि क्यों नहीं हो रहा, सामने वाला क्यों नहीं कर रहा, उससे मैं कैसे बदलाव लाऊंगी. तो बेटर है कि अपना काम करो, उसके बाद आप आगे शुरू करो. And that has only helped me become more me and more humane. So I think it is very important, and it has taken me a lot of self-help books to be able to come to this conclusion. I remember that. What were you reading? I read a lot of books. I read that Power of Habit. I read The Subtle Art of Not Giving a F. No, that one I didn't read. Okay. But I've read a lot of books. I read about, I mean, several books. Okay. Like there's just no end to it. If you come to my library sometime. Were you always a reading kind of person? Yes, I was always a reading person, and the art of thinking clearly. And I mean, I've got everything. You name it, I have it. Wow. And I have read most of them. Wow. But I think that has really helped me, because I used to be the one kind of a person where I used to feel
कि बुक्स तो मतलब बड़ी हैवी बुक्स, भाई हाथ में भी हैवी होनी चाहिए और मतलब दिखाने के लिए भी होना चाहिए कि हम तो बड़े अच्छे हैवी बुक्स पढ़ते हैं, वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल. But then, and I used to really, I mean, as a young girl, in my 20s and in my school days, I used to really look down upon people who used to be like reading self-help books. Okay. I used to be like, ये क्या किताब? हाँ, मतलब I guess वो एज में सबको ही एक दूसरे को जज करता है, यार ये कौन पढ़ता है? ये कौन पढ़ता है? But then I realized that it has helped me so much. There's this book by James Clear. I'm forgetting the book's name, but it was so good. It helped me so much about habits. And उसके बाद I was able to add a lot of things to my life. So now my entire week is absolutely packed. Wow. Earlier, it used to be just about work. Now, with that work, I have learned to do it in a little bit less time. I've taken out 1 hour in the morning and 1 hour in the evening, and everything that I always wanted to do, I have started adding to it. And it has helped me a lot. It has really made me a much happier person, because I really believe that you have to be happy in order to be able to give other people much more love. So that has helped me tremendously. So now I don't look down upon people who read. In fact, I keep telling people I have these set of books. मेरे को कोई भी गिफ्ट किसी को गिफ्ट देनी होती है, मैं वो सारी पकड़ा देती हूँ. Become infamous amongst my circle कि ये बुक्स ही पकड़ाती है. लेकिन I really want people to read, because I think it really does help you, because you see your brain, I mean the kind of neural pathways you create on a daily basis, I think it's important. जो चीज़ इंसान को चेंज करती है, आप आई गेस हर अच्छा इंसान ये सोचता है कि हम सामने वाले को वो दे दें. जैसे मुझे लगता है मुझे म्यूजिक ने बहुत बदला है, तो अब मुझे कोई मिलता है मैं उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट कर देता हूँ कि अरे उकुलेले, गिटार ले ले, तबला ले ले, ठीक है, कुछ at least indulge in something, it will change you as a person. Absolutely. वो आपके लिए बुक्स ने किया, I guess. Definitely. You mentioned about your divorce. If you don't want to talk about it, do mention. Do divorce change you as a person emotionally very much? Absolutely. It has been the best thing in my life, frankly. I was in a very toxic marriage for 7 years, and as a person, because of my dysfunctional childhood, I have always had a lot of like I always believed that no, people are nice, मैंने ही कुछ गलत करा होगा, maybe I didn't do this right, maybe let me improve myself, let me read more self-help books, let me do more meditation. I've done that all my life, and I did that for 7 years. And when the divorce happened, obviously it was very painful, and I got out of it, and it took me a lot of strength and effort, and all of that happened. But then suddenly 3 months later, I realized that wow, there is absolutely no toxicity in my life. I don't feel that victimized anymore. I feel complete ownership of my life. And after that, I started working on my self-care. I started looking after myself. I started dressing up better. Oh. I started going to the gym. I started exercising daily basis. I love dancing, so I started a dance class. So I did all of these things which completely changed me. So I really, I mean, I don't know how politically correct it is, but really the divorce has been the best thing of my life. I guess ऐसा कुछ भी statement नहीं politically correct, हर चीज सही है. मेरे लिए तो सच में I have owned it up, and I have really felt so happy. And when we are in a bad marriage, mostly I have seen women have a tendency of blaming themselves. I have seen a lot of women go through it, and in fact I derived a lot of my courage from them as well in order to step out of that bad marriage. And today I feel so much happier, and मेरे पास तो जो भी आता है मैं तो उसको ज़रूर बताती हूँ कि देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, आप पूरी कोशिश कीजिए. मैंने 7 years दिए उस मैरिज को. आज मुझसे आप अगर पलट के पूछोगे, मेरे को इतना सा भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी जो मैंने करी नहीं. So I have given 7 years of my life because I took a decision. I decided to give 7 more years. I put in all my effort, and then I failed. And now I accept that failure, and today I am a much happier, much emotionally stronger person. And you see, as a child, I always had certain notions in my mind, because I don't know, 80s के बच्ची हूँ मैं, तो 80s की जो महिलाएं हैं उनके अंदर एक अलग तरीके के नोशन है, 90s में देखती हूँ अलग तरीके के हैं, 2000s में अलग तरीके के हैं. तो एक बड़ा अजीब सा नोशन हुआ करता था कि दिस इज़ वन पर्सन, अगर ये आपके लिए नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी. आई हैड दैट काइंड ऑफ अ नोशन.
and that has broken, and I have started realizing, you know, that I don't need anybody to love me. First I have to learn to love myself, and because I have started doing that, now I feel that, you know, there are so many nicer people, you know, there's just people around me who've always had affection for me. True. And I can receive that affection much better. Earlier I was always about, earlier it was always about ki bhai haan bas this person, if he loves me then I'm happy. But now it's like my mother is there, my friends are there, my extended family is there, my sisters are there, and I feel just so loved and blessed. Your office is also very nice यार, बहुत प्यारे लोग मिले। जैसे ही मैं एंटर किया मुझे कई लोगों ने बड़े अच्छे से ग्रीट किया। आई एम लाइक अक्सर आप सरकारी ऑफिस में ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो। तो जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। Who was your biggest strength around that time? किसने सबसे ज़्यादा आपको strength दिया है? Around the time of divorce. Self-help books. Okay, ठीक है। That, and apart from that, of course, my mother. Okay. My mother is a very You're very strong close person. to your mom? Yes, I'm very close to her. My mother is a very, very strong person. Very cool. And you know, she was very against my marriage. She was like कि ये बिल्कुल ही suicidal है, please मत करो. And I was an activist at that time, and I was like नहीं मैं तो करूँगी. And so I got married. But the beautiful part about her nature is that over these years, the 7 years when she saw me suffer, she did not even once say I told you so. And that is so beautiful. I think that urge to tell people that मैंने तो बोला था is just so strong in some people. But my mother is so dignified. In those 7 years, she never said even once. ये चीज़ मैं आज आंटी से सीखता हूँ। मैं कोशिश करूँगा लाइफ में ये मैं थोड़ा सच में कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी ना कभी निकल ही जाता है। मैं भी honestly accept करूँगा, मेरे अंदर से भी निकल जाता है। बट हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है वो सीखना चाहिए। So my mother, then my nani, nana, who are no more right now, they died in COVID. They were so strong. I mean, they were like 84, 85, and they were like कुछ नहीं होता बेटा, it's absolutely okay. And मैं तो पहले ही कह रहा था मत करो, कुछ नहीं होता, छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हैं, सब हैं. Then my masi, my mausaji, my sisters. So this entire family, plus I have a wonderful set of friends जिनके कंधे पे रख के मैंने बहुत रोई हूँ. पहले यहाँ पे और लोग जो आते थे उनकी समस्या सुलझाती थी, फिर कई बार जाके उनके कंधों पे बैठ के वहाँ पे रोई हूँ मैं कि मतलब it's so bad because you know you get into that cycle of feeling victimized. And I'll tell you, I have gone through, obviously all of us go through several feelings on a daily basis, but I will tell you that the feeling of victimization is the worst feeling ever. That is my understanding. If you're feeling angry, you can, you can just like shout, vent it out, or you can just take a pillow and you can just beat it up. But if you're feeling victimized, it just kills you from inside. And that is the worst part about toxic relationships. You end up feeling constantly victimized. And फिर आपको constantly कोई चाहिए जिसको आप constantly rant करो, and then the cycle just continues. So I think that emotionally and mentally, I have grown tremendously, and even spiritually, because any hardship brings you closer to God. True. And you believe in God? I believe in God. Okay. I believe in a higher power, and I believe that all religions, all various forms can take you to the higher power. True. I believe in bhakti, I believe in Gyan Marg, I believe in all of it. But frankly, the one thing that I believe the most in is that जो गीता का सार है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा. Karma. Karma is what I believe in very, very, very strongly. That is something that I really believe in. Apart from it, obviously, I mean, these are questions that probably you cannot decipher in a lifetime, and you take many lives in order to reach to that. ये तो अनंत काल के सवाल है, ये तो चलते रहेंगे. अनंत काल के सवाल हैं और चलते रहते हैं और बड़ा मुश्किल है इनके आंसर्स पाना. और काफ़ी बार ऐसा होता है where you feel very destroyed, you feel कि 8 महीने की बच्ची के साथ ऐसे हो गया, 90 साल की महिला के साथ ऐसे हो गया. Where are you, God? But at the end of it, whatever I read and whatever I understand and how I live my life, I'll tell you one thing. There's hardly been ever any moment in my life where I have done anything wrong per se. I have always tried to be right. And I have experienced through my experiences कि जब मैं बहुत फंसी हुई होती हूँ ना, जब मुझे ऐसा लगता है कि मर गए, उस समय कोई ना कोई आकर
मुझे बचा लेता है और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मदद आ जाती है। बिकॉज मैं जब 22 साल की थी इंजीनियरिंग ख़त्म करी और उसके बाद मैं झुग्गियों में रहने लग गई और मैं 7 साल तक झुग्गी में रही हूँ। और क्योंकि क्यों ऐसा? Because you wanted to experience मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी, मेरे अंदर बहुत दर्द था, मैं आई हैव हैड अ वेरी बैड चाइल्डहुड, आई हैड अ लॉट ऑफ पेन, आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, आई यूज्ड टू फील वेरी विक्टिमाइज्ड कि देखो बाकियों के घर तो बड़े अच्छे हैं, बाकियों की फैमिलीज तो बड़ी अच्छी हैं, हमारे साथ ही ऐसे क्यों हुआ। एंड मैं बहुत दुख में थी और बहुत दर्द में थी, तो मुझे पता नहीं कैसे, एंड आई रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई वाज डायरेक्टेड इन अ मैनर दैट आई एंडेड अप टीचिंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। झुग्गी के बच्चों को पढ़ाने लग गई और उनके एक्सपीरियंस, वो पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा ये बच्चे तो बड़े खुश हैं और इनके पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास तो इतना कुछ है और फिर भी मैं इतनी दुखी हूँ। तो मुझे एक आईना सा दिखा एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं कुछ साल काम करूँगी, झुग्गियों में रहूँगी एंड देन आई विल डिसाइड क्या करना है। वो 1 साल 2 साल हुआ, 2 साल 7 साल हो गए और 7 इयर्स तक तो मैंने बिल्कुल वॉलंटियर किया है, झुग्गी में रही हूँ। और वो चीज़ में मेरे को जो बहुत होता है, हाँ बहुत होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का बेस्ट पीरियड था। वो चीज़ ने मेरे को जो सिखाया है, मैं किसी भी हार्डशिप में रह सकती हूँ, मुश्किल से मुश्किल समस्या में रह सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारी हार्डशिप चाहे कितनी भी बड़ी है, हमसे कहीं ज़्यादा बुरे हाल में लोग रह रहे हैं और खुश भी रह रहे हैं। तो उस चीज़ ने जितना मुझे सिखाया उतना मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया। सो मैंने ये माना है कि ये मतलब जब आप किसी और के लिए कुछ भी करते हो ना, उसकी एक दुआ आप कमाते हो। मैंने लाइफ में कुछ नहीं कमा रखा, आप मेरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, कुछ नहीं है मेरे नाम पे मेरे नाम पे कुछ है ही नहीं। मतलब मैं तो उनमें से आती हूँ क्या लेके आए थे क्या ही लेके जाना है। बट एक्चुअली जब आप ऐसे करते हो, मतलब आपको इतनी खुशी होती है ना, यू फील मच हैप्पियर। एंड मैंने ये देखा है जब जब ज़रूरत कुछ पड़ी तो वो हमेशा आ गया। मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कभी भी कोई चीज़ लगी, मुझे याद है झुग्गियों में भी जब रहती थी तो कभी ऐसा लगा कि मैं बड़ी अनसेफ हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगी, तुरंत कोई ना कोई आ गया जिसने मेरी हेल्प कर दी। या जब बिल्कुल पैसे नहीं होते थे तो लगता था कि कैसे अब मतलब कैसे करेंगे, क्या मैनेज करेंगे, तो कोई फ्रेंड आ जाता था, वो मदद कर देता था। तो मतलब इस तरीके से पूरी लाइफ चली है एंड इट हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सो कूल। आप एक रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट है, लाइक वो भी नहीं है जो करते हैं और जाने नहीं जाते, आप उनमें से हैं जो जाने मानी भी हैं। क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिविज्म फॉर यू? लाइक सबके लिए परिभाषा बहुत अलग है, कितना स्ट्रगल होता है। मतलब मैं शायद कभी उस चीज़ से रिलेट नहीं कर सकता बिकॉज मैं कभी वहाँ गया नहीं, बट आई रियली वांट टू नो फ्रॉम समबडी हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड द गोल्डन डेज ऑफ एक्टिविज्म। यू हैव मेड सब्सटैंशियल चेंज इन द सोसाइटी। आपके एक्टिविज्म के दौर ने बहुतों को आपने जोड़ा है और उसके चलते चेंजेस आए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल, प्लस अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप रेगुलरली आज भी उतनी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिविज्म एंड हाउ एग्जैक्टली यू परसीव इट? See, I think activism is a way of life. You don't have to leave everything in order to become an activist. You can be an activist wherever you are, whenever you are, just by doing the right thing, just by trying to help other people. And that is what activism is. हम इसको बहुत glorified बना देते हैं. You don't have to be an Anna Hazare, or you don't have to be Swati, or you don't have to be, you know, people who have left everything and अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ के, and or maybe, you know, you don't have to be a Mother Teresa. If you can be, great. But आप जहाँ हो, जिधर हो, आप एक काम दिन में अच्छा कर सकते हो। और जब वो एक काम अच्छा करते हो जिसमें आपका सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी और के लिए करते हो, तो आप एक दुआ कमाते हो। अगर पूरे साल में आप 365 दुआएं भी कमाते हो ना, तो मेरे को ये लगता है कि दैट इज़ मच मोर देन योर हीरे एंड जवाहरात। ऑफ कोर्स आई हैव हैड अ जर्नी, अ लाइफ जर्नी। जब मैंने 22 साल की उम्र में, जैसे बताया, इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के झुग्गियों में काम करना शुरू करा और आज तक मैं वो काम कर रही हूँ, तो वो बहुत रिवॉर्डिंग रहा है, वो पर्सनली बहुत रिवॉर्डिंग रहा है। देखिए, ये महिला आयोग है या मेरे को लोग जानते हैं या मेरा काम, आई हैव जस्ट बिन ब्लेस्ड एंड लकी दैट वेज। देयर आर मेनी मोर पीपल हु आर डूइंग मच मोर वर्क देन आई कैन एवर इमेजिन एंड हु हैव बीन मच मोर इफेक्टिव इन देयर लाइव्स, और उनको कोई नहीं जानता। बट जो भी हम जिंदगी में करते हैं, सी एवरीबडी हैज 365 डेज, एवरीबडी हैज अ वीक, एवरीबडी हैज 24 आवर्स इन अ डे। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। सही बात है। एंड मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके पास 24
घंटे हैं और अगर आप एक कॉर्पोरेट पे भी काम करते हैं, बट क्या अगर वहाँ पे कॉर्पोरेट में कोई लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, क्या आप उसके लिए खड़े होते हैं? अगर आप खड़े होते हैं तो मेरे हिसाब से आप एक एक्टिविस्ट हैं। अगर आप ये रेस्टलर्स जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके लिए खड़े हुए तो आप एक्टिविस्ट हैं। अगर आप एनिमल्स के लिए खड़े होते हैं तो आप एक्टिविस्ट हैं। एनवायरनमेंट के लिए खड़े होते हैं तो आप एक्टिविस्ट हैं। जो लोग जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि मुझे क्या करना है, मेरे को क्या है, बिकॉज जब भी आप किसी चीज़ के लिए लड़ेंगे या खड़े होंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। इट हैज़ बिन अ ह्यूज स्ट्रगल। जब आप झुग्गी में जाके रहते हो, बाथरूम आपके घर में नहीं होता, आपको पब्लिक टॉयलेट में जाना होता है। रात में अगर 3 बजे आपको वॉशरूम आ रहा है तो आप कहाँ जाओगे? बट कभी ऐसा थॉट आता है कि कहाँ आ गई मैं? बीच बीच में तो आया होगा, बीच बीच में आया, और स्पेशली जब से महिला आयोग में हैं और जिस तरीके का अटैक है और जिस तरीके के प्रेशर्स हैं, तो काफ़ी बार ऐसे फील होता है कि गॉड इट्स टू मच, मतलब कैसे करें, बिकॉज one case and then second case and third case, and there's so many times when, you know, I have cried. There is this room inside the office where many times I have gone inside and I have cried and cried and cried because it's just so painful. So there are many times when you do feel like that, but then you realize that how much effort you are putting in and the kind of impact you are being able to bring about. So that is why one does continue, because matlab अल्टीमेटली लाइक आई सेड इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मैंने ये देखा है, जैसे मैं छुट्टी पे गई, आई वेंट टू सम प्लेस विद माई फैमिली एंड मैं गई 3-4 दिन की छुट्टी पे, और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ गलत हो रहा था एंड आई रियलाइज्ड दैट दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। देन आई हैड टू सेंड माई फैमिली बैक एंड देन आई स्टेड बैक एंड आई टुक इट अप विद द अथॉरिटीज़। सो यू सी, it's not as if that the activist inside me can be shut off, you know, वो vacation mode में नहीं आ सकता, because जहाँ आप गलत देखोगे आपको वो गुस्सा आएगा और आप फिर उस सिस्टम से लड़ोगे, because that's who I am and that is what I have made myself, because I really feel, I really value courage, I really value honesty, I really value a real person. I mean, I've met a lot of people in my life and I don't like, I mean, I don't want to be judgmental, but I like people who are real. तो वो जो है वो मतलब होना चाहिए, जो है बोल दो, जो है सही है, वो गलत है, गलत है तो भी गलत है बोलोगे तभी तो आपको फिर हम बता पाएंगे कि सही है या गलत है। But I like those kind of people. So मेरे को ये लगता है कि activists are they're very amazing people. एंड येस, एक चीज़ होती है जब कोई बहुत अच्छा काम करता है, और स्पेशली एक्टिविस्ट्स में मैं ये देखती हूँ और मैंने खुद भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है, तो काफ़ी बार आप थोड़े, आपकी ईगो और एरोगेंस थोड़ी बढ़ जाती है, बिकॉज आपको ये लगता है कि अरे हम तो बड़े अमेजिंग हैं, हम तो बड़ा अच्छा काम करते हैं और दूसरे तो ऐसे नहीं करते हैं। दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक ऑल एक्टिविस्ट्स हैव टू बी केयरफुल अबाउट। आई always and always have worked on myself. I do meditation, I make sure and that it's most important that you should remain grounded, क्योंकि अगर आपने चाहे कोई भी काम किया हो, आप चांद तक चढ़ गए, लेकिन अगर वो चीज़ आपके दिमाग में चढ़ गई तो फिर आप फिर इंसान के लाने के लायक नहीं हो। कैसे ईगो को कैसे चेक पे रखना चाहिए? कई लोगों को सीखना चाहिए यार ये तो। शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छा कोट बोला था बहुत पहले, whenever I feel egoistic about myself, I take a trip to USA. The customs officer beat the shit out of me. Right. That's quite funny actually. But what is your check? How to keep the ego in check? सबके साथ होता है। 2 रातें झुग्गी में जाके रह लीजिए, सब पता चल जाएगा। सब कुछ आपकी जो अकड़ है वो सारी धरती पे आ जाएगी। आप बैठिए, आप समझिए, आप देखिए कि लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप दूसरों को देखिए, आप सीखिए, और कॉन्स्टेंटली हमें बेटर बनना है, उस एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके माइंड में ये चीज़ है ना कि मुझे ज़िंदगी में एरोगेंट नहीं बनना, मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी, मैंने उस दिन ये डिसीजन लिया था कि बाकी सब कुछ जो होगा सो होगा। 2 चीज़ें मुझे बहुत ध्यान रखनी, 3 चीज़ें रात। 1, ऑनेस्टी, चाहे कुछ हो जाए वन हैज़ टू रिमेन ऑनेस्ट। द अदर थिंग इज़ दैट वन शुड नॉट बी एरोगेंट, बिकॉज जो एरोगेंट हो जाता है वो फिर कुछ सीख ही नहीं पाता, उसको हमेशा ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, और वो एक इतना अनप्लेजेंट इंसान हो जाता है कि वो किसी की क्या मदद करेगा, वो खुद की मदद नहीं करेगा। एंड तीसरा ये है कि सेवा भाव रहना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिनको ये प्रिविलेज है कि उनका काम ही सेवा करने का तरीका है। और आपने कहा जैसे जो आप आए तो बड़े लोग मुस्कुरा के बात कर रहे थे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज डिस्कस्ड वेरी ऑफन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं।
इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना पेनफुल काम कर रहे हैं, तो इसीलिए तो कर रहे हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी शुड ऑल्सो बी बेटर ह्यूमन बींग्स. इफ़ योर डे बाय द एंड ऑफ 24 hours, if you're not even like a millimeter ahead of what you were, and by ahead I mean that as a better human being, I don't think it's worth living. So cool. आप अभी ट्रैवल की बात कर रहे थे, थोड़े मेरे दिमाग में सवाल आया था तब, लेकिन हम कॉन्वर्सेशन, कभी सोलो ट्रैवल किया है? लाइक ट्रैवल मतलब घूमने के लिए, लाइक प्रॉपर हिमाचल वैसा बैकपैक लेके ट्रैवल किया? लद्दाख सोलो ट्रैवल 15 days. ओह वाओ. And it was amazing. It was really really nice. सोलो ट्रैवल बहुत चेंज करता है ना आपको ऐसा इंसान? पूरी तरीके से चेंज कर देता है. जैसे मैं जब लद्दाख गई थी, आई थिंक इट वाज 3-4 years back, and I went alone. गर्मी में, ठंड में? मैं सितंबर में गई थी. ठीक है. तो 15 दिन के लिए मैं गई, एंड जब मैं गई वहाँ पे तो उस समय 1 साल से मेरी बुक्स बंद हो रखी थी बिकॉज आई वॉज सो मच इन टू वर्क एंड ऑल. मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी, एंड ऑब्वियसली आई वॉज गोइंग थ्रू सेवरल इशूज एज वेल, तो नहीं हो पा रहा था. बट आई वेंट अलोन एंड एवरीथिंग केम बैक. And I remember I had made one funny video at Pangong Lake, sitting alone, because it was so beautiful. I was in a village. I lived in a homestay alone there. So cool. And it was so beautiful and so peaceful. So I think travel can completely change you. लोग पहचान जाते होंगे. अब तो लोग पहचान जाते होंगे. लद्दाख में जाके पैंगोंग लेक पे अकेले बैठे हैं. आप कहाँ सोचो, लद्दाख भी अभी वो बन गया हमारा पूरा दिल्ली. अभी कुछ दिन पहले वो नहीं पहचाने दिल्ली, बाइक कार लेके पैंगोंग लेक में कार चला रहे थे लोग. काफी लोग पहचाने, बट अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो आप सॉलिट्यूड ढूंढ लोगे. सही बात ऐसा है. बट मतलब मेरे को उसमें इतना मजा नहीं आता. मेरे को वो अच्छा लगता है कि भाई अकेले आए हैं तो अकेले रहें. एंड हाँ, तो तारों की चादर के नीचे अकेले, थोड़ा किताबें हों और उससे कुछ ज़्यादा तो कुछ अच्छा नहीं है ना. बिकॉज इफ़ यू गो टू पैंगोंग लेक देन वहाँ पे वो यू कैन सी द मिल्की वे एट नाइट. So that was really, it was I think life changing moment for me. It was very beautiful. It was so I think all kinds of travel, whether it is a short travel, it's a long travel, and whether it's a travel with your family, friends, and mostly travel alone. I mostly travel alone. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है because उसमें क्या है कि आपको जब थोड़ा सा भी समय मिला, अपने बैग्स पैक करे और आप अपना निकल लिया. So but 2-3 places have been like really very nice for me. Ladakh was very nice. Auroville was beautiful. I really liked Auroville. एकदम एक्सट्रीम छोर है दोनों. हाँ, दोनों अलग छोर हैं, बट दोनों ही इतनी अच्छी जगहें हैं. Auroville is very beautiful. Auroville is beautiful. And when साइकिल उठाई वहाँ पे पूरा साइकिलिंग करती थी तो बड़ा अच्छा लगता था. It was very nice. And तीसरा is you were saying something. Lots of places I have traveled to, but mostly in India. Outside तो बहुत कम. मतलब my sister lives abroad, तो 1-2 बार उससे मिलने गई तो बस that's it. Wow. What is the next goal in life? अभी DCW है. What's next? Do you want to move into hardcore politics? अगर मौका मिलेगा तो? I am not sure. I don't think so. I've not thought about it. I am a person who believes in today. तो मैं तो. But you are a good policy maker. You have done some amazing work in the past. और अच्छे लोगों की जरूरत है पॉलिटिक्स में, पॉलिसी चेंजेस में, पॉलिसी मेकर्स की. That's true. But really, frankly, a lot of people ask me that, but I don't have an answer. I have not really thought about it. Of course, you can bring a lot of change through politics, and because we are also here because of politics only. I was appointed by the Delhi government, so obviously that if you bring, if you get electoral power, you can bring about a lot of change. True. So the Chief Minister of Delhi has appointed me here. And we've been able to bring about a lot of change. So it's all through the electoral process. But at the same time, as a person, do I want to join politics or not is a decision that आराम से सोचेंगे. अभी मैं डिप्लोमेटिक आंसर दे देती हूँ. आराम से सोचेंगे. Not like that. Not like that. Not diplomatic. I mean, मैंने तो कुछ भी diplomatic नहीं बोला. हाँ, true. Thanks for being honest actually all this while. No, I am like that. Actually, we've just had it's been like a conversation. Yeah. So if you come and meet me without the camera also, I'll be talking this one. ठीक है, बढ़िया. बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो बांटती नहीं, अरे बिल्कुल बांटना चाहिए. How has been the experience working with Mr. Kejriwal? It has been good. It has been good. He is a good guy who wants. He's a to bring smart about guy. change. He's a smart politician. He knows. Definitely, and that's what I, at least as a common man, looks at him. He actually he's A, very intelligent. B, he likes to get into details.
So if you prepare a presentation and if you bring to him, he is so intelligent that despite your preparation, full preparation, he might be able to point out कि इसमें ये क्या है, and then you are like, okay, this is something. But I guess that flows into the team as well. The way you mentioned कि 32 cars है और इतने jeeps हैं, I'm like, अच्छा इतना याद रहता है लोगों को. But ठीक है, अच्छी चीज़ है. I've got a good solid training. I mean, because I was an RTI activist all these years. तो मेरे को नंबर्स फिगर्स एकदम गलत नहीं होने चाहिए. एक तो वो भी है, प्लस इंजीनियर भी हूँ, प्लस लॉजिकल भी हूँ, प्लस आई हैव एन आई फॉर डिटेल. डेडली कॉम्बिनेशन एकदम. I have an eye for detail. So I really like people who do their work thoroughly. So I like to be very, very thorough with whatever I do, because it's very important. Otherwise, मतलब whatever you are doing, whether you are an artist, whatever you are doing, I mean, there's just so many streams of life which, and if I was not doing this, maybe there were various other things that probably I would have done. Whatever I would have done, I would have made sure that I try and do it the best. My last question to you is slightly serious. We were talking about wrestler protest, and since you also said कि अगर कभी given a chance हुआ तो मैं भी पॉलिसी मेकर में जाने में हमें जाना भी चाहिए. अभी जिन पे एलिगेशंस लगे हैं वो इन जनरल एक सिटिंग एमपी है. क्या अजीब नहीं लगता, एंड डोंट यू सी कि देयर शुड बी मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर एजुकेटेड एंड मोर वेरी इन्फ्लुएंशियल हैवी समाज से जुड़े लोग मोर इन पॉलिटिक्स rather than just like a body of muscle power? I agree with you. Of course, more educated, more humane, more sensitive people should join politics. But at the same time, I think the structure of politics in our country is quite bad. I think that also needs to change. Otherwise, you might have the best of people joining politics, but at the end of the day, they may end up doing, things that they don't like. So I have a feeling that it's very important that the entire structure, mechanisms of politics have to change, and democracy should be at the grassroots. You see, there are, if you look at the American democracy, of course there are various flaws there and there are several problems there. But at the same time, काफ़ी जगहों पे उनके बिल्कुल grassroots तक democracy है. एक आम इंसान decide करता है कि मेरे को सड़क बनवानी है, नहीं बनवानी है, क्या ये पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, क्या ये कम लग रहे हैं. तो मुझे लगता है कि उन तरीके के structures को बनवाने पे हमें सबको काम करना चाहिए. And it is very, very, very crucial that even if the best people join politics, if the systems exist like this, तो फिर कैसे वो सब बदल जाएंगे वापस. आज रूलिंग पार्टी में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अच्छा इंसान नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि क्या रूलिंग पार्टी में आज किसी ने भी रेसलर्स को सपोर्ट करा? किसी ने नहीं करा, क्योंकि अच्छे लोग हैं, पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी है, तो फिर उसके बाद क्या बदलाव होगा. तो मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे, और सारी पार्टीज़ में मैं ये मानती हूँ कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट वी चेंज आवर स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम द ग्रास रूट्स. Each and every person should be powerful. Each and every person in the party should be powerful. There should be internal democracy. There should be 50% women in reservation in parliament as well as in legislatures. अभी तो 14% महिलाएं हैं पार्लियामेंट में. वो भी जब बोलती हैं तो उनके साथ भी बदतमीजी हो जाती है, पार्लियामेंट के अंदर हो जाती है. तो किस तरीके का हमें स्ट्रक्चर्स बनाने, उन पे काम करने की ज़रूरत है. बट देन यू आर वेरी राइट दैट ये स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी पॉलिटिक्स में घुसना पड़ता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट. नथिंग लाइक दैट. I will explore, but in the future. Right now, I will concentrate on the work that I'm doing. So cool. आज आपसे मिलके बिल्कुल वैसा लगा कि वो कबीर दास का एक दोहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टॉकिंग टू AV Life podcast. It was wonderful to have this really amazing conversation with you. Thank you. Thank you very much. Thank you.